Neelam, should I start? Okay, fine. So basically आज हमारा मतलब पूरा जो कॉल्स रहेगा वो डिस्काउंट एंड ऑफर्स के बारे में है. ऑफर्स एंड प्रमोशन. सो बेसिकली मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑफर्स एंड प्रमोशन से पहले हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव राइट नाउ. सो हमारे पास अभी क्या है कि डिस्काउंट है, मेंबरशिप है, लॉयल्टी प्रोग्राम है. जो अभी हम सेल्स में मतलब कस्टमर को जो प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर के लिए जो बेनिफिट्स रहता है, उसमें हमारे पास आइटम लेवल, बैच लेवल, और जो हमने मेंबरशिप रखा है वो मेंबरशिप प्रोग्राम और लॉयल्टी प्रोग्राम है. पर हमारे पास क्या नहीं है, तो हमारे पास जो नहीं है वो है ऑफर्स एंड प्रमोशन. तो ऑफर एंड प्रमोशन क्या है, तो वो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में नहीं बताता, थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे कि क्या है. तो ऑफर्स एंड प्रमोशंस में आप स्लैब वाइज ऐड कर सकते हो. स्लैब मतलब रेंज, जिसको आपको अमाउंट बेसिस पे स्टोर करना है कि मैं पर्टिकुलर मेडिसिन अगर ये अमाउंट से ये अमाउंट के बीच में बेचता हूँ और उसका अमाउंट ऐसा होता है तो मैं उनको 5%, 10% ऐसा डिस्काउंट दूंगा. सेम एज बोगो और बोगा है. Hello, बोगो Jignesh sir. यस. Someone is asking to speak in English. If you can repeat from there. ओके ओके फाइन. ओके, इट्स ओके. Okay, so today we talk about the offers and promotions. So first things like I want to share with all like what we have right now in our product. So we have loyalty points, we have membership program, we have also discount basis on item level and batch level. But what we do not have right now is offers and promotion. Like what is offer and what is promotion. If someone wants some manufacturer wants to give some offers to push their products, so they allowed you or chemist to push the product. So that type of offers we are like launching on all accounts. So basically first in the offers like slab, which you can add the range like which in based on amount. So you have set one amount like 100 to 200, give the discount 10%, 5%. Second one is bogo, buy one get one. What happened, some chemist wants to push some products like if someone buys the face wash, then give another product, give that product one free. So that type of offers we have launched right now. And the third one is boga, like buy one get another products. If someone buy one products, so chemist wants to push another products for the promotion and whole things. So this is offer and promotion. But we have clear about some priority. Like if you are running one pro offers, then we definitely use offers discount and the offers things first, after that discount. Second one is batch greater than item. Like if I set in batch level and item level, so we use batch level first and then item level. Third one is store and HO. If I run offer in store and HO both, but if I run some another offer into store, then first I will take store offers and then I will take the HO offers. Some notes are here like in the offers, only one offer at a time on one level or on single item. In the boga we will have a separate entry with 100% discount. In bogo we'll run a discount basis, not a separate entry, so not a separate entry. And offer creation will be on a stream, because what happen if we allow to create offer in loose, uh, we do not have
like option in that loose. So we create an offer in step. And the last one is quantity basis on item level. Then we will add quantity plus free in that item. So here we have just brief describe about the offers and promotion. Now I will show you offers and discount in our software. So if you want to create offers and promotion, go to the account and settings, then service and tools, then here discount and offers. When you click on discount and offers, first you have see the offer listing page. When you can, if you create offers, so this is the listing page of offers. If you want to create new offer, then click on the just new button. When you click on the new button, the offer creation page is here. So in that page we already have some UI like this in inventory. So you have to just click on or filter out the products. If you want to create offers on particular item, if you want to create based on category, if you want to create based on tags, if you want to create based on expiry, like if I want to push the product which is nearly expired, then I will also create the offer regarding then. So if I want to create offers from the manufacturer, then I will select the manufacturer here and the margin also. So right now I'm selecting the OTC product here and just click on the apply button. So when I click on the apply button, the whole items list are here. So if you want to deselect the item, you can. If you want to select whole item, just click on the above button. We will show you a 20 items here. But if the OTC category have more than 20 products, we will assign whole products to we will assign offer to whole products. Then after we have some offer related inputs here. Like if you create offer title, like I want to create flat discount. So I will add here flat discounts. Second one is offer level. Like I want to create a offer based on item. So here it is selected by default item level. If I select expiry from here, if I want to push the product which is nearly expired, and I select the expiry filter, then here offer level is batch level. So this is the level of items like in which I have to apply the offer. Second one is offer threshold. Offer threshold is like which basis you want to apply the offer. So in the offer threshold we have two options, slab and quantity. Slab means if you want to create an offer between a range, like I have one products beta guard and I want to push these products, like if someone buy that products 100 of amount, then I will give the 5% discount to him. And another is quantity. If someone buy the beta guard more than 5 quantity, I will give a 10 I will give you give them 10% discount. Those this is the threshold of and third one is offer type, like what which type of discount you want to give. If I selected slab, then cash discount is default. Other is if I select quantity, then I have option like BOGO, BOGA and cash discount. If I select BOGO, like buy one product and get one product. If I select BOGA, then buy one product and get another product. So if I select BOGO, then here is some inputs like which how many quantity you have to sell and the another product is free. So if someone buy the three products, I will give one products free. So here is input. If I select 3, then the range is if someone buy 3 products, then I give one products free to him. So this is BOGO. And if I select BOGA here, then the other inputs are here, like which items you want to give of free.
So when I click on this, I search here each item. If I want to give a free item like face wash or anything, so I want to I have select here and just submit. Here is the selection of item. So this is the boga and the offer type, and the last two ones is offer validity. Like this offers is validity like next 7 days, next 30 days, whatever you want to add. And last option is branches. If you have a standalone or only retail, then the one option is here. And if you are a chain pharmacy, then you have to apply the offer on your store also. So here is the option to select your store and whole. After that, just I click on the offer, create offer. I have to, yeah, I click on the, okay, if I want to create offer, just click on this, and here is attention, like this offer will apply into 12 items. If the item is more than 20, we also show the counts like 304, 340, this type of message. And when I click on OK, the offer is created, and you can show here the offer like flat discount. So this is the offer creation. And now I will click on the cells when I use that offers. If I select product here, you can see the star here after the item name. So you can click on this icon, and the pop-up will show like how much percentage you can get from the offer. So here is the message like get 5% discount on MRP of 100 rupees, and here is like the amount is only 41. So the offer is not applied properly. If I add more quantity here like 200, so the offer is applied automatically. So here is now a tick option. When I click on the tick, you can get the message like you have applied the offer here. I get one another products like BOGO. See, here is the star icon, like it show some offer is available here, but not the applied. So if I click on this icon here, I show will show the offers detail here, like buy two get another one free. So when I add one more quantity, and here I add the another product like Pond's. So here the offer is applied, because what is the offer? Buy two get another one free. I will add Betaguard into. I will add these points into Betaguard. So this is the option where you can use these offers for the customer. One more product like I have add. Sensodyne Fragile. Okay, so here is the product I have had, and if you see here like buy three get another one free. So if you want to create or push some products for the promotion, you can create the offers, and the offers will apply automatically here. And when I click on this item, we also give the option to click on this and apply the offer here. And you can also search from here or scan here like from our QR code and barcode. The offer will automatically applied here. So this is the whole flow about the offer creation and the apply offer in the cells. So this is the whole points of offer and creation. If you have any question, then ask us.
Yes, शिव मेडिकल फार्मेसी. Yes. एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था, ये ऑफर्स जो है ये हमने अप्लाई किए हैं तो हमें तो पता है ये ऑफर्स हैं, ये कस्टमर्स को कैसे पता लगेंगे? या तो उसमें बेसिकली हम अभी सोच रहे हैं कि उसमें क्या करेगा. आपको पता होगा कि CFD आता है, जो कस्टमर फेस डिस्प्ले होता है, राइट. तो अगर आप कस्टमर फेस डिस्प्ले यूज कर रहे हो, तो हम इन फ्यूचर ऐसा करेंगे कि कस्टमर फेस जो डिस्प्ले होगा उस पे ऑटोमेटिकली कस्टमर को वहां पे दिखेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स आप अगर बाय कर रहे हो, तो उसके सामने आपको कौन कौन सी ऑफर्स वहां पे मिल सकती है. तो वो पूरा कस्टमर फेसिंग डिस्प्ले में आ जाएगा. अच्छा, जैसे मान लो हमने ऑफर्स बना दिए, सपोज करो हमारे सामने कोई प्रीमियम कस्टमर आया और उसे पता नहीं है ऑफर्स के बारे में, तो इज देयर एनी ऑप्शन कि भी हम उन्हें वो मतलब ऑफर को डिक्लाइन कर दें या अप्लाई, या ये कंपल्शन है कि अप्लाई होगा ही होगा ऑफर? Yes, offers is always applied automatically. You cannot leave the offers if someone not know. Because what happened, अगर मैन्युफैक्चर ने आपको बोला है कि मेरी ये प्रोडक्ट पुश करनी है, राइट, और आप उनको पुश ही नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होगा कि मैन्युफैक्चर को भी पता नहीं चलेगा कि वो पुश हो रही कि नहीं हो रहे, आप प्रमोशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. तो ऑफर्स जो भी क्रिएशन हो गए उसमें ऑलवेज वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा. क्या ये प्रिंट बिल में पता चलेगा कि ऑफर अप्लाई हुआ है? Yes, definitely. We will show the one icon after the in print invoice. सर इसमें एक ही इश्यू है सर, जो इसकी लिस्टिंग आती है उसमें अपन सेग्रीगेट पता नहीं चल पाता है कि अपन किस प्रोडक्ट के लिए ऑफर दे रहे हैं जब आप उसको खोलते हैं. Yes, मैं आप स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ. आप वहां पे देख सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट पे है या नहीं है. जी बताइए. स्क्रीन इज विजिबल? या सो आप यहाँ पे जब भी मतलब कोई भी लिस्टिंग पे आप क्लिक करोगे, आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे पता चलेगी कि मैंने कब बनाई थी, क्या वैलिडिटी है. आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफर आइटम काउंट. सो इफ यू क्लिक ऑन दिस काउंट, you can see the whole of items here, like in Okay. which I. Okay. ओके. Yeah. Any question? Yes. जी सर, इसमें बस ये तो शो कर रहा है सर कि जो अपन ऑफर मतलब बाय टू गेट वन में के अदर वाला तो शो कर रहा है, लेकिन मेन जो प्रोडक्ट है वो इसमें शो नहीं कर रहा ना सर. नहीं, दोनों करेगा सर. मैं वापस आपको दिखा देता हूँ. दोनों करेगा. स्क्रीन विजिबल है मेरा? जी जी. ओके. सो आप यहाँ पे दोनों कर सकते हो. यहाँ पे आप देखो, आपको यहाँ पे आइटम काउंट दिख रहा है जो ऑफर्स का मेन आइटम है. ठीक है, तो ये मेरी बीटा कार्ड थी. आपको जो फ्री क्वांटिटी मिल रही है वो फ्री के लिए आपको यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है कि फ्री आइटम काउंट. वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको फ्री आइटम मिलेगा. मतलब आपको दोनों भी आइटम मिलेंगे, मेन आइटम जो है वो भी और फ्री आइटम जो है वो भी. नहीं, इसमें जैसे मैंने सेट कर रखा है 2 पीस है किसी आइटम के, जो फ्री वाला आइटम है वो मेरे को आपको जो ऑफर काउंट दिखा रहा है आपका, वहां पे वो शो कर रहा है.
जो मेन आइटम है जिसपे ऑफर है वो मेरे को कहीं इसमें शो नहीं कर रहा सर। दोनों है सर, मैंने बताया ना। मेन जो लिस्ट है वो यहाँ पे दिखाएगा जहाँ पे आपको ऑफर आइटम काउंट लिखा है ना वो, और जो फ्री आइटम मिल रही है वो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा। नीचे पे? हाँ, यहाँ पे आप देखो, आप मेरा कर्सर दिख रहा है आपको जहाँ पे ब्लू लाइन है? जी जी। यहाँ पे आप देखो ये फ्री आइटम काउंट लिखा है ना, उसके नीचे जो वन है ना उस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्री वाली आइटम मिलेगी, और यहाँ पे जो ऊपर वाला सबसे है ऑफर आइटम काउंट, वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपको मेन मेडिसिन मिलेगी जिसपे आपको ऑफर सप्लाई होगी। लेकिन सर इसमें एक इश्यू ये आ रहा है, जैसे अपन ने किसी आइटम पे मान लिया 5% डिस्काउंट अपन देते हैं, उसपे सेट कर रखा है, यस, और उसमें अगर अपन ने 2 पीस पे 20% डिस्काउंट सेट कर देते हैं तो फिर वो जो रेगुलर डिस्काउंट है जो इन्वेंट्री में अपन ने सेट कर रखा है वो डिस्काउंट लेता ही नहीं करेगा सर। मैंने ऑफर और प्रमोशंस का जब स्टार्ट किया तभी मैंने आपको पहले वो बताया था नोट कि हम ऑलवेज ऑफर्स जो रन कर रहे हैं वो ऑफर्स को हम सबसे प्रायोरिटी में रखेंगे। अगर ऑफर्स रन हो रही है तो उसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि इन्वेंट्री वाला भी लेंगे। तो वो ओवरलैप भी नहीं कर पा रहे हैं अपन उसमें, अगर आप चाह भी। अगर ऑफर सप्लाई है वो आइटम पे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ ऑफर्स वाला ही डिस्काउंट और वो सब अप्लाई होगा। मतलब ये अगर अपने को 5% करना है तो वहीं पे लिस्टिंग में उसी में जाके करना पड़ेगा, वहां पे वो डालना पड़ेगा अपने को। यस। इन दैट केस अगर जेनरिक मेडिसिन है तो उसके ऊपर हम ऑफर चलाना है तो मुश्किल हो जाएगा ना? लाइक आप रिपीट करो ना क्वेश्चन, मतलब पता नहीं चला। मतलब ऑलरेडी जो इन्वेंट्री पे जो डिस्काउंट हम लगाए होते हैं मेडिसिन पे, उसके बावजूद उसके ऊपर अगर कोई ऑफर चला रहा है तो वो सिर्फ जो हम ऑफर चला रहे हैं वही लेगा, जो हमने बेसिक डिस्काउंट दिया है वो नहीं लेगा। यस नहीं लेगा। पर मुझे सर उसमें एक क्वेश्चन है कि आप ऑफर्स जो रन कर रहे हो वो ऑफर्स में मतलब ऐसा कहीं पे होता है कि इन्वेंट्री में जो डिस्काउंट सेट किया है वही आइटम को सेम आप कहीं पे भी मतलब ऑफर्स रन कर रहे हो और उसको पुश कर रहे हो? हाँ, ऐसा होता है। ओके। क्योंकि जो इन्वेंट्री पे जो हम डिस्काउंट देते हैं वो बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट ही रहता है। राइट। तो अगर उसके ऊपर हम ऑफर चलानी है तो मुश्किल हो जाएगा ना? यस राइट। सर ये केस में अगर ऑफर्स मतलब कोई इन्वेंटरी पे आपका सेट डिस्काउंट है और आप ऑफर चला रहे हो फॉर पीरियड ऑफ सपोज 7 डेज, वो जब ऑफर डीएक्टिवेट होगी तो वो डिफॉल्ट डिस्काउंट वापस चालू हो जाएगा। आपका इन्वेंटरी का डिस्काउंट कभी ओवरराइट नहीं होगा, वो वापस सेट नहीं करना पड़ेगा, वो वापस चालू हो जाएगा। जब तक ऑफर वो पीरियड में है ना तब तक वो आइटम पे वो ऑफर्स चलेगी। ओके। एंड अगर हम स्लैब वाइज डिस्काउंट रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉर पर्टिकुलर अमाउंट का अगर परचेस हुआ, ए आइटम हम फ्री में देने वाले हैं, इन दैट केस वो जो फ्री आइटम है वो सिंगल आइटम ही हम चूज कर सकते हैं या मल्टीपल आइटम्स हम रख सकते हैं, उसमें से कोई एक चूज करे जो कस्टमर चूज करेगा? नहीं, आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल फ्री रख सकते हो, वहां पे ऑप्शन हमने दिया है, आप मल्टीपल फ्री आइटम्स रख सकते हो। एंड उसमें से कौन सा चाहिए वो कस्टमर चूज कर सकता है? हाँ, उनमें से मैंने जो आपको दिखाया ना उसमें वो पॉपअप ओपन होता है जहाँ पे हम आइटम्स दिखा रहे, वहां से आपको 3 आइटम्स दिखेगी, आप बता सकते हो और कस्टमर चूज कर सकता है कि ये तीनों में से मुझे कौन सी फ्री चाहिए। करेक्ट। ओके। लेकिन सर उसको सेलेक्ट करते हैं तब हम, तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं होता है ना? नहीं, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं सिर्फ आपको सजेशन दे देता हूँ कि वो आइटम आपको ऐड करनी है। मतलब उसको जाके मैनुअली अपने को स्कैन करना है या फिर मैनुअल डालना ही पड़ेगा इसको ना? या आप सर्च कर सकते हो, हमारा क्यूआर कोड है उससे और बार कोड से आप सर्च करके क्यूआर कोड स्कैन करके ऐड कर सकते हो। यस शिव मेडिकल। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जब कस्टमर्स को मतलब अभी फिलहाल जब आपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म ही नहीं किया कि ये ऑफर चल रहे हैं, सपोज करो वो कस्टमर कोई चीज के लिए आ गया, इन द सेंस जैसे कोई डायबिटिक मेडिकेशंस के लिए ही आ गया, तो उसके बाद वो तो आ ही गया ना, वो दवाई लेके ही जाएगा। ये हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा उनको मतलब उनके बिना मांगे हम दे रहे हैं, मतलब उनके क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि उन्हें क्या मिलेगा,
फिर भी हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये तो लॉस नहीं है एक तरीके से, मतलब हम फ्री में दे रहे हैं एक चीज। पर वो क्या था सर, आप ऑफर्स रन कर रहे हो तो ऑफर्स आप किस लिए रन करते हो? मुझे जहां तक पता है, आप जो ऑफर्स क्रिएट करते हो वो ऑफर्स एक्चुअली आप तभी करते हो जिसमें आपको कोई प्रोडक्ट को पुश करना है। आप मतलब ऐसा कभी नहीं करने वाले कि जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपके रेगुलर बेसिस पे चल रही है उस पे आप जैसे आप बोल रहे हो कि आप इन्वेंट्री और वहां से आप डिस्काउंट सेट करके जो रेगुलर बेसिस पे डिस्काउंट चल रहा है वो करेंगे। ऑफर्स और प्रमोशन ऐसी चीज है जहां पे आपकी जो नॉन मूविंग आइटम है, आपकी एक्सपायरी प्रोडक्ट है, या फिर आपको मैन्युफैक्चर ने कोई प्रोडक्ट दी है जिसको प्रमोट करना है, तो आप उसको प्रमोट करने के लिए जो कर रहे हैं इसके लिए ऑफर एंड क्रिएट प्रमोशंस है। आप जो बोल रहे हो नहीं कि आपकी जो रेगुलर मेडिसिन चल रही है उसके लिए तो आप जो आइटम डिस्काउंट अभी यूज कर रहे हो वही सही है। आपको अगर प्रमोट करना है किसी आइटम को, या फिर मैन्युफैक्चर ने आपको कोई आइटम दिया हुआ है कि मेरी ये प्रोडक्ट है उसको आप प्रमोट करो, तो वो प्रमोशन के लिए ये पूरा ऑफर इंजन है। सर नहीं इसमें आप मेरा बात एक इनपुट है हाँ जी। कि जैसे आपने हिमालय शैम्पू कोई बाय करने आया है, आपने हिमालय शैम्पू का बिल बना रहे थे, उसमें आपको ऑफर पॉपअप हुई है, तो आपका सेल्समैन या जो भी है वो बोलेगा कि आप 2 शैम्पू की बोतल लोगे तो आपको एक कंडीशनर फ्री मिलेगा। आप उस हिसाब से प्रमोट कर सकते हो, हर ऑफर्स याद रखनी इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे जब एक शैम्पू वो खरीदने आया होगा तो वो ऑफर के चक्कर में है ना, आप उसको बता सकते हो कि आप 2 परचेस करो तो आपको 1 फ्री मिलेगा। उस ओके, टाइप का प्रमोशन ये अपन थोड़ा कर सकते मतलब हाँ, ये क्योंकि ये है कि भी जब कस्टमर आएगा तब उसे हम सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूं, वहां पे हम आपको सजेशन देंगे कि आपको पर्टिकुलर इस ऑफर में इस आइटम पे कोई ऑफर अप्लाई हो सकती है। हम आपको तभी ऑफर अप्लाई कर देंगे जब वो ऑफर्स के सिलेक्शन में आएगा, पर वो ऑफर्स के रेंज में आएगा, उसकी क्वांटिटी या वो अमाउंट के। अगर वो अमाउंट में कुछ नहीं आता है तो हम सिर्फ सजेस्ट करेंगे, हम ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं करेंगे। और सर इसमें एक वो भी है कि जैसे एमआरपी रेंज का जिग्नेश सर ने बताया था कि 100 टू मतलब 200 के अबोव जाओगे तो ही आपको ये ऑफर मिलेगी, तो उस वे में भी अपन क्वांटिटी पुश कर सकते हैं। जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट आएगा तो उसको अपन बोल सकते हैं कि आप बल्क में लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, उस टाइम पे अपन सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ ये सही है कि भी मतलब सेल्स पर्सन उसी वक्त उन्हें गाइड कर दे कि ये करंट आइटम पे ये ऑफर है, अगर आप ये क्वांटिटी इंक्रीज करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ओके। यही है सर, यही वे है, अभी भी जो चल रहा है वो यही वे है। इन दैट केस सर, अगर Yes. इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट वो कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, ऐसा नहीं है जो हमने ऑफर वाले प्रोडक्ट सेट कर रहे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट अगर हम ओनली स्लैब सेलेक्ट करें कि अमाउंट इतना हुए, एंड अगर थोड़ा और बढ़ा देते तो ये आपके लिए ऑफर है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा बोलना चाहते हो, मैं जैसे समझो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने रेंज रखी है 100, मोर देन 100 5%, मोर देन 200 10%। अगर मैं 100 से भी ऊपर गया तो आप ऐसा बोल रहे हो कि मुझे आप सजेशन दो कि अगर आप 200 से ज्यादा लोगे तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, राइट? नहीं सर, वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं लेकिन अपने बिल अमाउंट पे। इसमें कोई हाँ प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ओनली बिल अमाउंट रहेगा। नो सर, हम आइटम लेवल पे ही अभी जो भी है ऑफर्स वो हमारा है, बिल अमाउंट पे कुछ भी नहीं है सर। सर आपका अगर वो फीडबैक हम देख सकते हैं बिल अमाउंट वाला कि करना है या हाँ, नहीं, हम कंसिडर कर सकते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ आइटम, अगर बिल आइटम समझो वो 450 का उसका परचेस हो रहा है, एंड अगर हम यस उनको बता रहे हैं कि अगर आप कुछ और आइटम ऐड करें और 500 का परचेस करेंगे तो ये ऑफर है, या फिर ये फ्री में मिलने वाला है, यस समथिंग लाइक दैट। yeah, we will get your points and we will discuss about that. Okay. हाँ, क्योंकि बिल अमाउंट पे ज्यादा बेटर है, क्योंकि दवाइयों में ऐसा है कि भी सिर्फ डायबिटिक और बीपी में तो ये चल जाएगा कि क्वांटिटी इंक्रीज करो तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, मगर अगर कोई इन्फेक्शन का केस है उसका तो कोर्स फिक्स है 5 डेज का, वो तो उतनी ही दवाई लेगा, अब ज्यादा तो लेगा नहीं वो ऑफर के चक्कर में। ये Yes, sir. बिल अमाउंट पे हो तो ज्यादा बेटर रहता है। यस सर, गेटिंग योर Okay. पॉइंट। Definitely we will think about it.
Anyone have question? सर मेरा एक क्वेश्चन था। Yes. तो कोई कस्टमर एक साथ ऑनलाइन पे और कैश पेमेंट करेगा तो कैसे करेगा मल्टीपल? सर रिपीट करें ना क्वेश्चन। ऑफर्स और प्रमोशन रिलेटेड ऑफर है। से नहीं सर, नहीं सर, ऑफर से प्रमोशन नहीं, ओके अदर्स। ओके नीलम, एक बार इनका पॉइंट से ऐसा हो तो देख लो, और जो भी मतलब कनेक्ट करो ना उनके साथ, नासिर सर के साथ। या नहीं, ये ऑफर वाली स्कीम जो है आपकी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे जो है ना क्रोनिक पेशेंट जो है वो मतलब काफी मतलब सही है, बढ़िया है। यस, या थैंक यू सर। जी बोलिए। ठीक है मैम। Any more questions? मैम एक सजेशन है, अगर आप इसको कैटेगरी वाइज भी, अगर जो टोटल बिल पे अपन कर रहे हैं वो कैटेगरी वाइज डिस्काउंट भी अगर अपन सेट कर पाएंगे वो भी अच्छा रहेगा। जैसे जेनरिक पे सेट कर दिया राइट। वो भी अच्छा रहेगा। Yes, sir. ओके सर। सर कैटेगरी लेवल पे तो आप अभी भी कर सकते हो, मतलब हमने ऑलरेडी वहाँ पे ऑफर इंजन में ऑप्शन रखा ही है कि आप फिल्टर आउट कर सकते हो। वहाँ पे आप अगर कैटेगरी जेनरिक सिलेक्ट कर रहे हो और जेनरिक पे आपको कुछ ऑफर्स रखनी है तो आप वहाँ पे ऑलरेडी बना सकते हो अभी ऑफर्स में। लेकिन सर वो पर्टिकुलर आइटम ही सिलेक्ट करेगा, पर्टिकुलर नहीं आइटम। नहीं नहीं, आप कैटेगरी पे कर सकते हो, मैं एक बार आपको वापस दिखा। कैटेगरी तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद तो वो आइटम वाइज जाएगा ना, उसमें मतलब पर्टिकुलर आइटम का 500 का, उस कैटेगरी में अगर वो टोटल 500 का लेगा तो बात। ओके ओके ओके, डेफिनेटली वी विल थिंक अबाउट दिस। Any more question? Okay, thank you so much to